Good morning, students. Welcome back to maths class. Today, I will discuss you application of derivative and especially word problems of maxima and minima. So far, you know the maxima and minima as well as local maxima and local minima. How to find. So see here in word problem, first word problem is that is a master question for all problem, that if sum of two number whose sum of two number is given, that is say 15, and product is maximum. So question is that find the two number whose sum is 15 and product is maximum. So let two numbers are x and y. Their sum is x plus y equal to 15. Always doing this in all questions. Okay? Means let two variable x and y. This one is a master question for all. And then find the value of one variable in term of another. That is y equal to 15 minus x. So what you have to maximize product p, that is x into y. Substitute the value of y. And now this p depends upon x. So this one is the simple form, that is y equal to fx, just like this. And you all know that what are these steps to find the maximum value of y equal to fx. So what is the first step? First step is find the derivative, dy upon dx. Then second step, put for maxima and minima, dy upon dx equal to 0. Then put dy upon dx equal to 0. You will get some value of x, a and b. And then after that, find double derivative, that is d square y upon dx square. Clear? At x equal to a, if double derivative is positive, then value of function is minimum. And if double derivative is negative, then value of the function is maximum. See here, p is the function of x, so dp upon dx, that is 15 minus derivative of x square 2x. So for maxima and minima, put this equal to 0. That is, you can also say critical point. Critical points are turning point as well as where the function is not differentiable. So put 15 minus 2x equal to 0, you will get x equal to 15 by 2. So double derivative is nothing but this comes out to be minus 2. So we have only one value of x, that is 15 by 2, but this does not depend upon x. So it means double derivative is negative. So p is maximum and x is 15 by 2 as well as y also 15 minus 15 by 2, that is 15 by 2. So in this way, you can do the question. So this one is the main basic question, or you can say master question for all the question. We will take the help of this and see next type of problem. Okay, so next question, find the dimension of rectangle whose perimeter is given and area is maximum. Area is maximum means now perimeter of rectangle is given. So let the dimension, we have to find the two sides of the rectangle. Correlate with this, with the master question, that find the two number whose sum is given. So same way, let one side is x, that is length of the rectangle is x, and breadth is y. Write this step in this. And correlate with given as x plus y equal to 15 on the same way. Perimeter you know equal to 2 into length plus breadth. So from here you can find the value of one variable. Please learn this algorithm. First let two variable correlate with given and then find the value of one variable in term of another. And now area, what is area? Area is x into y.
So half of x into p minus 2x, and further you can do this, that this become half px minus 2x square. So now again you can see, yeah, this one is the, you can find the derivative. So what is the derivative? dA upon dx, that is equal to half as usual outside. Derivative of px is p, and here 2x square means आपके पास क्या आ जाएगा प्लस, here is minus, so plus 4, sorry, minus 4x, not plus, minus 4x. And now you all know that this derivative is maximum. Maximum means area is maximum if this dA upon dx is 0. So that is p minus 4x equal to 0. So what is x? X is nothing but p by 4. Perimeter divided by 4. So from here, you will get the value of x. After substituting this value here, you will get the value of y. So p minus p by 2, because if you put x here, double derivative you can find, that is again a negative because derivative of p is 0, and this become minus 4. So here maximum. So you can find the value of y from here. Y. So it means both x and y की value जो है वो भी p by 4 आ जाएगी बेटा. So it means both are same. So it means this rectangle is nothing but it is a square. So two types ये question पूछा जाता है. One is that find the dimension such that area is maximum, and another one is that so that of all rectangle with the given perimeter, the square has the maximum area. I think you got this point. So now come to the next question. So see here what is in the next question. So that of all the rectangle inscribed in a given fixed circle, the square has maximum area. So it means now you have given what? You have given a circle, fixed circle, and rectangle is inscribed in this. So there can be infinite rectangle in this circle, because you know one angle of the circle is 90 degree. Sorry, rectangle is 90 degree. It means this diameter is the diagonal of a rectangle, because you know angle on a semicircle is 90 degree. So that is why I have crossed this diagonal to the center of the circle. Now again, what is given? If radius of the circle, since circle is given, it means radius is given. Radius is given means diameter become 2r. And what is length? Length of the rectangle is x and breadth is y. Same concept. So again, you know the concept that x square plus y square equal to 2r whole square. Means you have to use what? The sum of two number is given. Given के साथ relation बेटा. तो यहाँ क्या given लग रहा है आपको? Given के साथ relation मिला. X square plus y square equal to 2r square. So that is y equal to under the root 4r square minus x square. After that, we have to maximize area. So what is area? Area is nothing but x into y. So just substitute the value of y. And now, because again we have to maximize this area, so better find the square so that this derivative becomes easy. So suppose this one is z is square equal to j. So find dz upon dx. So now you can find, because x के से बेटा अंदर multiply कर लेना, ये बन जाएगा 4r square x square and minus x raised to power 4. अब आपको derivative जो है वो easy रहेगा find out करने के लिए, and you can find, and then after that put dz upon dx is 0, and then you will get the value of x. Then find double derivative. If double derivative is positive, then minima. If negative, then maxima. Clear? And if you get the value of x, you can also find y from here. So you can do that question again same way. Another approach to do this question is
another approach, you can see what we can do. So in second approach, you can correlate this as well also. Okay, let this angle is theta. So it means x is nothing but this become 2r cos theta and y equal to 2r sin theta. ठीक है, रिलेशन मिल गया, मतलब just like a parametric equation, both x and y depend upon theta. So now you can find area. What is area? Area is x into y. So substitute the value of x, 2r cos theta into 2r sin theta. That become 4r square sin theta cos theta. And after that, you know 2 sin theta cos theta. That is sin 2 theta. So 1, 2 beta outside रखो और 1, 2 अंदर दे दिया. तो ये बन गया sin 2 theta. And now it is very simple. You can find easily dA upon d theta. So what is dA upon d theta? That is nothing but 2 is outside as usual. R square is also constant. So 2r square is constant. And derivative of sine 2 theta is nothing but cos 2 theta. So derivative of the sine 2 theta is cos 2 theta into 2. So it means what actually happened when cos 2 theta is 0. dA upon d theta is 0 means cos 2 theta is 0. So what happened? If cos 2 theta is 0, you will get 2 theta equal to pi by 2, meaning theta equal to pi by 4. ठीक है, then you can find the double derivative. Double derivative cos का naturally है माइनस आएगा और नेगेटिव आने से डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा. ये थीटा पुट करके जरूर शो करिए. आपके पास जो बेटा डेरिवेटिव है वो क्या बन जाएगा, सिंपल कंसेप्ट बन जाएगा. नेगेटिव होने से मतलब एरिया मैक्सिमम हो जाएगा तब व्हेन थीटा इज पाई बाई 4. और अगर आप थीटा बेटा पाई बाई 4 यहाँ पुट करते हैं तो cos पाई बाई 4 इज 1 by root 2. So 2r upon root 2, that is nothing but root 2r. और वही वैल्यू बेटा y की आएगी, that is also equal to root 2r. So what happened? X and y are equal. It means this rectangle is a square. तो यही क्वेश्चन था आपके पास. देखो क्या पूछा गया था आपके पास कि so that of all rectangle inscribed in a given fixed circle, the square has maximum area. So in this way you can learn this concept. चलिए next आगे चलते हैं. Okay, again see, now I will only discuss with you starting of each question, how to do and complete you can solve after that. ठीक है बेटा, इस पे जस्ट आप स्टार्टिंग को अच्छे से समझ लो, आपको कंप्लीटली मिल जाएगा कि क्या बताया. Prove that the area of right angle triangle of given hypotenuse is maximum when the triangle is an isosceles. देखो इसमें अब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है लेकिन बेटा ये साइड मेंशन नहीं है. हाइपोटेन्यूज गिवन है तो गिवन टर्म मिल गई. जैसे आपके पास था कि सम ऑफ टू नंबर इज 15, तो सेम वे हाइपोटेन्यूज इज गिवन, लेट अदर टू साइड्स आर एक्स एंड वाई. सो व्हाट इज द रिलेशन, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम वे से. हाइपोटेन्यूज क्या बन गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और पिछले क्वेश्चन में 2r था यहाँ. सो इट मींस y इज under the root h square minus x square. You have to maximize area. So what is area? 1 by 2xy. Substitute the value. And again, you can do with this question with the same concept. Let this one is the area. And now a square, find a square. So that you will get 1 by 4 x square into under the root, not under root now, h square minus x square. And you can से दिस इज इक्वल टू जेड. और बेटा अब आपको इजी पड़ेगा बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, डी जेड अपॉन डी एक्स. यही प्रोसेस देखो इधर, अगर जो राइट हैंड साइड में अगर आप क्वेश्चन को स्ट्रेस कर पा रहे हैं तो इसको भी देख लो बेटा, इसमें क्या पूछा गया. सो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल of all the right angle triangle inscribed in a given fixed circle,
आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज मैक्सिमम एरिया। इसमें भी वही होगा, एक्स और वाई इक्वल आएंगे और सेम सिचुएशन में यहाँ भी वही है। बस अब क्या किया गया, हाइपोटेन्यूज गिवन हो ना होने के बजाय ट्राइंगल को बेटा इंस्क्राइब करने की बात। तो इसका मतलब गिवन है सर्कल, सर्कल गिवन मीन्स डायमीटर। राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं फिर कहूंगा कि ये आपके पास जो डायमीटर है ये कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, दैट इज diagonal that passes through the center, means that become the diameter, and let r be the radius of a circle, so 2r become the diameter. So now you can do this also. You know the relation between x, y and 2r. बिल्कुल सेम कंसेप्ट, जैसे यहाँ h था यहाँ उसकी जगह 2r हो, y की वैल्यू you can find this, area is half xy, and again beta same concept, you say this one is nothing but find from here also a square. So what is a square? 1 by 2 whole square means 1 by 4. This become x square and under the root गायब हो जाएगा, ये नहीं लिखना है, तो क्या बचेगा 4r square minus x square. Have you got? और इसको फिर से उसी तरह से इसको z कह लो और मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के लिए dz अपॉन dx। ये बेटा सारे क्वेश्चन करने हैं, मैंने पिछली बार भी हल्का सा आइडिया दिया था, लेकिन दिस एक्सरसाइज इज very very important from examination point of view, that is why I am recording this question for you again. ठीक है, इसको आप उसी बेस से भी, पिछले वाले बेस से भी कर सकते थे, जैसे वो रेक्टेंगल में किया कि let this angle is theta, again same way x upon 2r, that is x equal to 2r cos theta and y equal to 2r sin theta. You can also do like this. अब बेटा ये आप देखो आके आपको कौन इजी लगा। सो व्हाट इज द एरिया, एरिया का सेम स्टेप यही रहेगा, 1 by 2x into y, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड y, 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर और आगे बन जाएगा लाइक दिस, ये सिंपल ये बन जाएगा r स्क्वायर sin एंड ये एरिया बन गया। और विद रिस्पेक्ट टू थीटा बेटा इसको फिर से ये कर लीजिए, तो डी अपॉन डी थीटा क्या बनेगा, आर स्क्वायर आउटसाइड cos 2 थीटा इंटू 2, cos 2 थीटा कब जीरो होगा, व्हेन 2 थीटा इज 90 डिग्री, व्हेन थीटा इज पाई बाई 4, और थीटा पाई बाई 4 आने से ही आपको पता है क्योंकि डबल डेरिवेटिव cos का नेगेटिव होता है तो नेगेटिव, और ये दोनों साइड बेटे इक्वल, क्योंकि ये एंगल जब पाई बाई 4 होगा तो ये भी पाई बाई 4 हो जाएगा, और पाई बाई 4 होने से आपके पास x और y दोनों सेम। So I think you got this point also. Okay, so now move further. Now see beta, what is the in this question, so that the height of cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r upon root 3. क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। अब बेटा आपके पास ये स्फीयर गिवन है, दिस वन इज द स्फीयर, ये गिवन है, ठीक है कि नहीं, हमें इस पे फोकस करना कि दिस वन इज द गिवन स्फीयर। अगर ये आपके पास गिवन है तो आपके पास एक सिलेंडर को इंस्क्राइब किया हुआ है हमने, ये देखिए ये सिलेंडर आपने इंस्क्राइब किया इनसाइड, ठीक है, दिस वन इन अ सर्कल, ये लाइक दिस, ये आपके पास है इंस्क्राइब हुआ, और इसका रेडियस बेटा आर है। अब नेचुरली जब सिलेंडर इंस्क्राइब करेगा तो ये जो लाइन है ये फिर से सेंट्रल लाइन, मतलब जो हाइट वाली लाइन है, एक्सिस ऑफ सिलेंडर है, that is always passing through the center of the circle, not circle but sphere. Clear हो गया? And suppose this one is the radius of cylinder, let r be the radius and h be the height. दोनों चीजें बेटा हमने let कर ली, और ये मेरे पास क्या गिवन है, स्फीयर है, तो स्फीयर का रेडियस सपोज कैपिटल r है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग थोड़ा सा अपने माइंड में और अच्छे से क्लियर कर लो, ये r दिया हुआ, ये आपके पास टोटल h था, तो ये h by 2 बन गया, और यहाँ आपका रेडियस है। नाउ अगेन यू कैन सी,
हमारा तो मेन टारगेट बेटा इस फिगर से क्या मिला कि हमें रिलेशन निकालना था गिवन में। गिवन क्या है, रेडियस एंड एच एंड आर, ये हमने लेट किए हुए हैं, तो इनका गिवन के साथ क्या रिलेशन है। तो अगेन आप लोग देख रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। आप इसको टोटल ऐसे भी यूज कर सकते थे, बट वहां पर आपके पास अगर आप सोचे कोई कि सर यहाँ से ऊपर से ड्रॉ करे, बट ये साइड नहीं दी होगी, इसलिए मेरे को रेडियस गिवन है। इवन ये जो ऊपर है ये भी आर बन रहा है, ठीक है। बट नाउ सी, नहीं सॉरी, दिस वन इज नॉट आर, ये तो यहीं तक है। तो यही पॉइंट है, आप इसी ट्राइंगल से आपका काम हो गया। सो ये आपके पास है, देखो कंसेप्ट आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच बाई टू स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, और यहाँ से स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो इन टर्म ऑफ एच। और उसके बाद बेटा आपने मैक्सिमाइज मिनिमाइज किसको करना, वॉल्यूम को, तो बी इज पाई आर स्क्वायर एच। अब स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू अंदर पुट कर दो, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 4 इंटू एच। और इसको भी बेटा आगे एक कंसेप्ट लिख सकते हैं, क्या लिख लो, दिस इज नथिंग बट पाई, और इस एच से अंदर मल्टीप्लाई कर लो ताकि ये आपके लिए इजी बन जाए, आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब अपॉन 4। इसको ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा आपको, जब डेरिवेटिव निकालना है तो आप प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे, सीधा डेरिवेटिव निकल जाएगा। क्या निकलेगा, ये आपके पास है v, तो यहाँ से आपको बेटा मिल जाएगा dv अपॉन dh। so what is dv upon dh, I as usual outside, inside you will get r square, h का डेरिवेटिव आपको पता है 1 हो जाएगा, और r आपका कांस्टेंट है, माइनस एच क्यू मीन्स 3h स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर हो गया। तो यहाँ से मेरा कहने का मतलब मेरे को क्या है, जब इसको जीरो करूंगा फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो मैं यहाँ से h की वैल्यू निकाल पाऊंगा, और वो आप दिख रहे हैं आपको, क्योंकि इक्वल टू आर स्क्वायर होगा, तो ये दे सिंपली बिकम 4 आर स्क्वायर अपॉन 3। बाकी बेटा आगे डबल डेरिवेटिव इसका आप फिर निकाल लेंगे। डबल डेरिवेटिव देखो, आर स्क्वायर का क्या होगा, 0 आएगा, और 3h स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 6h अपॉन 4, मतलब अल्टीमेटली नेगेटिव आ गया। h जो भी आया है वो पुट किया जाएगा और नेगेटिव, ये वैल्यू मेरे को यहाँ h स्क्वायर की मिली थी। अब h क्या मिल जाएगा, 4r स्क्वायर, 4 का रूट 2, r का r, और 3 का रूट 3। तो देखो ये सिंपल है, लेकिन आपने सारे स्टेप्स करने हैं, मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ। एक और क्वेश्चन मैंने आपको ये कंप्लीटली सॉल्व करके बता दिया कि इस तरह से, ठीक है। तो इस पे आप अच्छे से फोकस करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे आप ध्यान दो, इधर आपके पास जो क्वेश्चन है उस पे फोकस करिए। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन that can be inscribed in a circle of radius r is 8 by 27 the volume of sphere। अब बेटा जो फिगर दी गई है, अब आपको एक स्फीयर गिवन है, फिर से स्फीयर गिवन है और कोन इंस्क्राइब करना है। अब कोन इंस्क्राइब करना है तो कोन भी छोटे बड़े बहुत से हो सकते हैं, बोलने का मतलब अब जैसे ये आपके पास स्फीयर है, तो कोन आपका ये भी कोन हो सकता है, ये एक कोन हो गया लाइक दिस। यहीं पर आपका बड़ा कोन हो सकता है ऐसे, जिसकी हाइट बढ़ा दी गई, लेकिन फिर रेडियस डिक्रीज होगा। तो ऐसे बहुत से कोन बन सकते हैं। तो ये कह रहा है कि आपने जो कोन इसके अंदर डालना है, ठीक है, इंस्क्राइब करना है, उसका वॉल्यूम लार्जेस्ट होगा, मतलब वॉल्यूम को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना। तो इसके लिए हम बेटा क्या कर सकते हैं, उस पर फोकस करिए। मेरे पास गिवन सिचुएशन पे अगर मैं काम करूं, तो मेरे को फिर से लेट करना है आर बी दी रेडियस, ये मैंने लेट कर लिया, और एच बी दी हाइट ऑफ द कोन, और फिर से बेटा सिमेट्री होने की वजह से ये भी सेंटर से पास करें। अब यहाँ ये आर है, तो ये ऊपर वाला भी आर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हाइट हुई आपकी टोटल, तो ये जो आपके पास नीचे वाली हाइट बची, दिस इज नथिंग बट एच माइनस आर। ये आपको अंडरस्टैंड करना है, टोटल हाइट माइनस रेडियस। क्लियर हो गया ना, ये रेडियस ऑफ स्फीयर। एंड सेम वे ये तो मैंने लेट किया ही हुआ है आर, और फिर आपके पास बेटा यहाँ पर ये देख लो, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, बिकॉज यू नो दिस आर, सो रिलेशन यू नो नाउ,
r square equal to h minus r whole square plus r square implies, यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करें h square plus r square minus 2hr, तो हुआ क्या, कुछ यहाँ से दिस वन इज आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अगर देखें r square से r square कट हो गया, और एक वेरिएबल की मैंने बोला वैल्यू निकालो, सपोज r square को ही ले जाओ लेफ्ट साइड, तो h square minus 2h, ये इस पे फोकस करो, r square की वैल्यू। अब यहाँ से h भी निकाल सकते थे, लेकिन देखो आगे मेरे को बेटा वॉल्यूम निकालना है, तो ठीक है मेरे को r की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, r square ही मैं सीधा पुट कर दूंगा, तो ये बन गया 1/3 पाई h square minus 2hr into h, और इसको भी एक स्टेप बेटा आगे कर लो, 1/3 पाई inside you will get h cube minus 2h square r। रीजन बीइंग मैं फिर ये कह दूं, क्योंकि आपको प्रोडक्ट रूल से बच जाएंगे। अब डेरिवेटिव आता है 3h स्क्वायर माइनस आपके पास बन जाएगा 4h r, और यहाँ से बेटा आप h की वैल्यू निकालना, h कॉमन होगा, जीरो तो होगा नहीं, तो जो एक वैल्यू आपके पास रहेगी अनदर वो ही आ जाएगी, डबल डेरिवेटिव भी इजी पड़ेगा। आई होप यू कैन डू दिस। अगर फिर भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी अगेन, सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दें। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ अब आप देखिए क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में सर्कल के अंदर, स्फीयर के अंदर सिलेंडर और स्फीयर के अंदर कोन। अब आगे वाला जो क्वेश्चन है बेटा, कोन के अंदर सिलेंडर, ये आपके पास स्पेशल टाइप क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, इसलिए ध्यान से देख लो कि ये रिलेशन कैसे निकलते हैं, ये मेन पार्ट है। अब आप यहाँ क्वेश्चन को अगर अंडरस्टैंड करेंगे, तो व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, तो इस पे फोकस करो बेटा। So that the height of circular cylinder of maximum volume that can be inscribed in a circular cone, right circular cone, तो ये आपके पास right circular cone, ठीक है, और इसके अंदर ये आपके पास सिलेंडर को इंस्क्राइब किया गया है, दिस वन इज अ सिलेंडर, ठीक है। मान लो अब इसको इंस्क्राइब करना है, तो इसका रेडियस और हाइट हमने खुद सपोज करनी है, ये टू वेरिएबल हमारे पास हो जाएंगे कि लेट आर बी दी रेडियस एंड एच बी दी हाइट ऑफ दिस सिलेंडर, इंस्क्राइब सिलेंडर। अब आपसे पूछा है वॉल्यूम इज 4/27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर थीटा एंड थीटा इज दी सेमी वर्टिकल एंगल। फिर ये है, ध्यान दो, हमने सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना, और ये बोल रहा है कि ये होगा वो मैक्सिमम वॉल्यूम। तो बेटा इसके लिए फिर वही वो काम है कि ठीक है, हमें लेट क्या करें, गिवन क्या है, गिवन कौन है, अगर कौन गिवन है तो इट मींस कौन की हाइट h, ये गिवन है, दिस वन इज अ कांस्टेंट, इसका जो भी रेडियस होगा वो आपके पास गिवन होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस वन इज अ रेडियस ऑफ कौन, ये गिवन होगा, ठीक है। तो इन चीजों को आपने अंडरस्टैंड करना। साथ में आपको कहा है कि थीटा इज दी सेमी वर्टिकल एंगल, कोण का ये दिया हुआ कि थीटा जो है वो सेमी वर्टिकल एंगल है। तो अगर बेटा थीटा सेमी वर्टिकल एंगल है, तो यहां से देखो ये एडी, ये जो मैंने लिखा हुआ है एडी क्या बनेगा, क्योंकि टोटल हाइट कोण की हमने कैपिटल एच ली और सिलेंडर की हमने स्मॉल एच, तो एडी इज नथिंग बट एच माइनस एच, और ये डी एफ ये आपका रेडियस है सिलेंडर का, दैट इज इक्वल टू सपोज आर। अब बेटा ये जो एक स्मॉलर ट्राइंगल है एंड दिस होल, दैट इज अगर इस स्मॉल ट्राइंगल में देखें तो मेरे को क्या मिल गया, टेंजेंट थीटा। व्हाट इज टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हुआ डीएफ, डीएफ अपॉन एडी बेस, और डीएफ की वैल्यू अगर आप देखें तो व्हाट इज डीएफ, ये आप लोगों ने ध्यान देना। तो डीएफ की वैल्यू है बेटा स्मॉल आर, ये आपके पास डीएफ की वैल्यू है स्मॉल आर, ये लिखा हुआ है इधर नॉट कैपिटल आर, एंड डिनोमिनेटर में एच माइनस एच, किसकी वैल्यू, एडी की वैल्यू। तो इट मींस यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू इन टर्म ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा गिवन है मेरे पास, एच भी कोण की हाइट है तो वो भी गिवन है, सो एच माइनस एच इंटू टेन। अब आपका जो स्मॉल आर है वो सिर्फ थीटा पे डिपेंड करता है, तो यही तो मैंने कहा था
एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे निकाल लो, दूसरा वेरिएबल आपके थीटा गिवन है तो किस पे डिपेंड कर रहा है, एच पे, एच हाइट है। अब नाउ वी नो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, तो बेटा आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, एच माइनस एच टेन थीटा होल स्क्वायर इंटू स्मॉल एच। अब अगर ये आपके पास सिर्फ एच का फंक्शन है तो फिर वही स्टेप करिए जो आपको अभी बताएगा, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सेम वे से इधर इस कंसेप्ट को बेटा क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट इज दिस। अगर हम यहाँ बात करते हैं, क्या दिया है, इफ द लेंथ ऑफ थ्री साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम अदर देन द बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। बेटा ट्रेपेजियम की बेस को छोड़ दो, ये मेरा बेस है और ये मैंने थ्री साइड बनाई 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ये तीनों साइड मेरे को दे दी गई, ये हमने बना लिया, ठीक है। और ये नीचे मेरे को नहीं पता है, find the area of trapezium when it is maximum if the length of three sides of trapezium other than base are equal to 10, ये 10 है, ये भी 10 है। अब आपको पता है ट्रेपेजियम में टू साइड्स पैरेलल होती है और टू साइड्स नॉन पैरेलल होती है, तो ये नॉन पैरेलल है और ये टू पैरेलल है, तो इसका मतलब ये साइड हमें नहीं पता। तो यहाँ से हम कंसेप्ट देखो, थीटा का ही कंसेप्ट, सपोज दिस मेक द एंगल विद थीटा विद बेस, तो ए एल की वैल्यू क्या मिल गई, 10 cos थीटा। सेम वे पे अब ये हाइट भी आपको क्लियर होगी, व्हाट इज हाइट, बी एल क्या हो गया 10 sin थीटा, बिकॉज आई एम इंटरेस्टिंग इन एरिया, ठीक है। अगर आपका ए एल 10 cos थीटा होगा तो इधर से डी एम, ये और ये सेम होंगे क्योंकि इधर भी 10 है इधर भी 10 है, ये और ये इक्वल है, ये राइट एंगल है तो दिस ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो इट मीन दिस इज आल्सो 10 cos थीटा, ये आपके पास डीएम के इक्वल होगा ड्यू टू कॉन्ग्रुएंसी, और सेम वे पे बी एल और सी एम आपस में इक्वल होंगे, ये सी। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 sum of the parallel side, so sum of parallel side means AD plus BC, so what is AD, AD को तोड़ के लिख लो, ये देखो AL plus LM plus MD plus BC, so AL की वैल्यू 10 cos थीटा, LM की वैल्यू 10, ठीक है, और MD की वैल्यू फिर से 10 cos थीटा, और ये BC की वैल्यू आपके पास 10, ठीक है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज BL, BL की वैल्यू आपको पता है बेटा क्या है 10 sin थीटा, ये भरी यहाँ पर इसकी वैल्यू, इनसाइड आपके पास 20 cos थीटा प्लस 20 बन गया। नाउ ये आपका क्वेश्चन फिर से किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे, सो यू कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, फॉर मैक्सिमम मिनिमम पुट दैट इक्वल टू 0 एंड देन नेक्स्ट डबल डेरिवेटिव। Let us see here. In this question, a window is in the form of a rectangle surmounted by a semicircular opening. Semicircular opening. The total perimeter of the window is given. Find the dimensions of the window. ठीक है, तो विंडो में आपके पास ये है, आपके पास ये विंडो बनी हुई है, ये सेमी सर्कुलर एंड है और ये थ्री साइड्स आपके पास रेक्टेंगल की है, ठीक है। बीच वाली को अब आपकी पेरीमीटर में काउंट नहीं होगी, हमने बनाई जरूर है ये सपोर्ट के लिए, लेकिन पेरीमीटर में ये काउंट नहीं होगी, ठीक है। तो पेरीमीटर जो होगा टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, पेरीमीटर गिवन है, तो इसको हमने बेटा 2x ले लिया, क्यों 2x लिया, दैट यू कैन सी 2x प्लस 2y, ठीक है, y प्लस y, मैंने इसको इसलिए लिया क्योंकि ताकि मेरे को रेडियस ऑफ सर्कल इजिली x मिल जाए, तो लेंथ हो गई 2x, ब्रेड्थ हो गई आपके पास y प्लस y 2 टाइम हो जाएगा, और यहाँ से पेरीमीटर आपको पता है क्या होता है, टोटल सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r, तो उसका हाफ हुआ ये, ठीक है, दैट इज पाई x, ये लिखा गया। यहाँ से बेटा y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x मिल गई। नाउ यू नो एरिया, एरिया इज नथिंग बट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज 2x इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ y, और यहाँ आ गया आपके पास पाई r स्क्वायर, दैट इज पाई x स्क्वायर,
अपॉन 2, हाफ, सर्कल का हाफ है। तो दोनों को ऐड कर दो और देखो ये ऐड करेंगे तो y को एलिमिनेट कर दो यहाँ से, इसकी हेल्प से सारे का सारा इन टर्म ऑफ x डिपेंड करेगा, यू कैन डू। ठीक है। On the same way, in this question, a point on the hypotenuse of a triangle is at a distance A and B from the sides of the triangle so that the minimum length of hypotenuse. तो बेटा देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में जरूर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन इजी है, वैल्यू जरूर कॉम्प्लिकेटेड। तो एक पॉइंट P है, इसको मैंने मान लिया कि इसकी जो लेंथ है, डिस्टेंस है, एक साइड से ये है लिखा हुआ, हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्रायंगल इज एट अ डिस्टेंस ए एंड बी। वो कहीं से भी ले लो, मैंने यहाँ से ए ले ली और यहाँ से बी ले ली ये। अब बेटा मेरे पास ए एंगल थीटा हमने खुद वेरिएबल लेट कर लिया। अब आई एम इंटरेस्टेड इन दिस हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज में मेरे को सीपी की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? सीपी अपॉन बी, बी गिवन है तो गिवन के साथ रिलेशन है। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज नथिंग बट कोसेकेंट थीटा। अब अगर ये कोसेकेंट थीटा है तो ये वैल्यू बेटा मिल गई बी कोसेकेंट थीटा ये। ठीक है। सेम वे पे आपके पास दूसरा अपर ट्राइंगल को यूज करते हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं तो ये भी थीटा होगा। और अगर ये थीटा है तो यहाँ भी बेटा वही हालत, हाइपोटेन्यूज हुआ एपी और बेस हुआ आपके पास ए, that is nothing but hypotenuse upon base is secant theta. So AP equal to A secant theta. ये वैल्यू मिल गई आपके पास AP AC। अब मेरे को हाइपोटेन्यूज को लेंथ को निकालना है तो ये बना AP प्लस PC, इन दोनों को मीन A secant थीटा प्लस B cosecant थीटा। हाइपोटेन्यूज थीटा पे डिपेंड कर रहा है तो इसमें DH अपॉन D थीटा आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। और आगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ये मैंने जस्ट आपको आइडिया के लिए दे दिया। फिर इसको जीरो पुट करेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव निकालेंगे एंड यू कैन कंप्लीट दिस आल्सो। ठीक। सो आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट। अब आगे आप see here in this question, find the area of the greatest isosceles triangle that can be inscribed in a given ellipse having its vertex coincident with the, this one is a vertex beta, coincident with one end of the major axis। तो ये वाला आपके पास एलिप्स, यू नो मेजर एक्सिस इसकी 2a होती है, माइनर एक्सिस 2b, तो ये कोऑर्डिनेट आपका a,0 है एंड this coordinate is minus a,0, this coordinate is 0,b and this one is 0,-b। अब ये मैंने आपके पास ट्राइंगल इंस्क्राइब कर दी जिसका वन एंड जो है वो आपका मेजर एक्सिस के साथ ले दिया, वर्टेक्स के साथ कोइंसाइड कर लिया। अब ये कोऑर्डिनेट बेटा एलिप्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, ये एलिप्स के ऊपर जो भी पॉइंट होता है वो होता है आपके पास a cos थीटा, b sin थीटा। पैरामीट्रिक जैसे आपके पास सर्कल में आते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, दैट इज r cos थीटा एंड r sin थीटा, सेम वे पे एलिप्स पे होते हैं a cos थीटा b sin थीटा। ठीक है। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट है। अब a cos थीटा का मतलब हुआ कि यहां से लेके यहां तक, x कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ ये डिस्टेंस ON, दैट इज इक्वल टू a cos थीटा। बट बेटा आई एम इंटरेस्टेड इनटू दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस में मैं इंटरेस्टेड हूँ। ये पॉइंट आपका a है और ये n है, ये मैंने निकाला हुआ है यहाँ पर कि व्हाट इज an। सो an इज नथिंग बट OA माइनस ON, so OA is equal to a minus a cos theta। So what you will get, same way पे a minus a cos theta and lm, lm क्या है? lm है बेटा ये टोटल डिस्टेंस, so twice of ln, और twice of ln यहाँ से लेके यहाँ तक y कोऑर्डिनेट, व्हाट इज y कोऑर्डिनेट? b sin थीटा, ये 2b sin थीटा होगा, यहाँ cos लिख दिया तो यहाँ भी ये 2b cos थीटा की जगह sin थीटा। Now you know the an, that is this one, an हाइट हुई है ट्राइंगल की और ये बेस हुआ, so area of triangle is 1/2 base into height, so that is a minus a cos theta into आपके पास दूसरी वैल्यू 2b sin theta, this one is 2b sin theta।
Now this area depends upon theta, so you can do this. Okay, come to one more question here. You can see this also. What is this question indicate here? Find the area of greatest rectangle that can be inscribed in an ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. अब बेटे रेक्टेंगल को इंस्क्राइब किया गया एलिप्स पे, तो नेचुरली सिमेट्री से रेक्टेंगल इस तरह से आएगी बीच में, लाइक दिस। अब कोऑर्डिनेट मैंने आप लोगों के पास गिवन क्या है, एलिप्स है जिसकी मेजर एक्सिस आपको पता है ए और 2a है और माइनर एक्सिस b है। तो मैंने कहा पोलर कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट के क्या होते हैं, a cos थीटा b sin थीटा। अगर इधर है सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस a cos थीटा b sin थीटा, थर्ड में तो दोनों नेगेटिव और फोर्थ में है तो a cos थीटा माइनस b sin। गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपको पता है क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दिया हुआ एलिप्स, रेक्टेंगल को इंस्क्राइब किया गया, ठीक है। तो वेरिएबल इस वक्त मैंने थीटा डाल दिया। अब आई एम इंटरेस्टेड ऑन दिस साइड, इस साइड क्या होगी, तो बेटा ये a cos थीटा का मतलब हुआ कि दिस डिस्टेंस अप टू हियर इज एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज a cos थीटा। तो मेरे को ये टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो ये डबल होगी नेचुरली सिमेट्री में, माइनस a cos थीटा इधर को, तो नेगेटिव का हमारा कोई रोल नहीं, तो ये 2a cos थीटा हो जाएगा। 2a cos थीटा बोलने का मतलब टोटल, ये देखो ये लिखा हुआ है ऐसा, दैट इज इक्वल टू 2a cos थीटा। और आप दूसरा डिस्टेंस फार्मूला से भी कह सकते हैं। सेम वे पे PS की बात करें तो ऊपर को क्या है बेटा, b sin थीटा, ये y कोऑर्डिनेट, नीचे भी आपका ये b sin थीटा हो गया, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये क्या बनेगा 2b sin। So what is the area of the rectangle? PS into SQ means PS into SR means length into breadth. So 2AB sin 2, ठीक है। sin थीटा cos थीटा को मतलब 2 के साथ जो है वो ले लिया तो sin 2। अब फिर देख लो ये sin 2 थीटा यहाँ से आप कर लेंगे डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा आपके पास cos 2 थीटा इंटू 2, फिर उसको 0 कर लेंगे तो वहां से थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो आई थिंक this concept is also clear. This question I have already discussed with you, that an open box to be constructed by removing equal square from each corner of a 3 meter by 8 meter rectangular sheet of aluminum and folding up the sides, find the volume of the लार्जेस्ट सच बॉक्स। तो ये बेटा मैंने आपको बता दिया, आपके पास अब रेक्टेंगुलर शीट है, हमने साइज स्क्वायर शीट का किया था, तो लेंथ आपके पास 8 है, ब्रेड्थ आपके पास 3 है। हम क्या करते हैं इसमें, ईच कॉर्नर को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये वाले कॉर्नर कट कर देते हैं, ये कट हो गया, यहाँ से ये कट हो गया बाहर, और यहाँ से ये कट। जब ये कट हो जाएंगे तो ये जो फ्लैप बनेंगे बेटा, इनको फोल्ड करके इस तरह से आपके पास क्यूब बन जाएगा। क्या इसकी लेंथ क्या रह जाएगी, क्योंकि 8 साइड हमने कट कर ली, मान लो x, तो ये x इधर से कट, x इधर, तो लेंथ बच गई 8 माइनस 2x। हाइट बेटा इसकी x आ जाएगी, जितना कट हुआ ये वाली हाइट बनेगी इसकी, ये हाइट x, और ब्रेड्थ हमारी बनेगी 3 माइनस 2x। नाउ यू नो length, breadth as well as height. So you know what is the volume, length into breadth into height. So V depends upon X. Now you can do this. So I have discussed with you all the questions of maxima and minima. So application based. So please, if you have any doubt, any query in simplifying, you can ask me, ठीक है। आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कैसे है, बट क्वेश्चन करना जरूर है। हिंट अप बेटा मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कैसे करने हैं। सो यहीं पर हमारा मैक्सिमा और मिनिमा का एंड भी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो अब मेरे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक टॉपिक बच गया, दैट इज डिफरेंशियल अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। और इसके साथ फिर वो लास्ट है, एक दिन का काम है डिफरेंशियल अप्रॉक्सीमेशन। उसके बाद बेटा हम फिर
इंटीग्रेशन स्टार्ट करें। सो आई होप यू विल कंप्लीट दिस। ठीक है, अच्छे से। तो बी रेडी विद दिस। थैंक यू वेरी मच।